Good morning, students. My name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Purali, District SS Nagar. बच्चे ਆਪਾਂ अपना बायो ਦਾ 5th चैप्टर कर रहे हैं, that is Principle of Inheritance and Variation. मेरी ਜਿਹੜੀ प्रीवियस वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰੈਗਰ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਇੰਨੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 16 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। 16 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਐਮੀਨੈਂਟ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਹਿਊਗੋ ਡਿਵੇਰਿਸ, ਟੈਸਚਰ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਸ਼ੈਮਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਲॉज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਜੀਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫੈਕਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, सो फैक्टर की हैं और एलिल्स की हैं, व्हाट इज़ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप्स, फिनोटाइप, क्योंकि अगर आप लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो मैंडल ने दिते हैं उसनों समझण वास्ते ये सारी टर्म्स का मीनिंग सानू क्लीयर होना चाहिए, राइट। अज आप बच्चे मैंडल का आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया सी। अज आप दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज करन जा रहे हैं, लॉ ऑफ डोमीनेंस एंड लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, राइट। ये दोनों लॉज जोड़े ने वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाल आप ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंडल का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उस टू करन वास्ते आपां सब तो पहला डाईहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। सो आप अपने अज के इस लैक्चर के मैं थोड़ा मैंडल के फर्स्ट 2 लॉज कराऊँगी, लॉ ऑफ डोमीनेंस एंड लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। उस तो बाद आप टेस्ट क्रॉस ते डेथ क्रॉस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। Okay students, in the previous lecture we discussed about some basic terms that were used in the inheritance studies, like what is gene, then allele, what is gene locus, homozygous, heterozygous, genotype, phenotype, then monohybrid, dihybrid crosses. I hope all these terms are clear to you. Okay. In the previous lecture students, we discussed about the monohybrid cross. Monohybrid cross means that cross which involves the inheritance of only one gene, one single gene. So when only one allele pair is considered in the cross breeding, then it is known as monohybrid cross. सो बच्चे आप प्रीवियस लैक्चर च देखा जिवें आप टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट नूं डवार्फ प्लांट नाल आप क्रॉस कर रहे हैं। टॉल वास्ते जिहड़े हैगे एलिल ओ की है कैपिटल टी, स्मॉल वास्ते आप सेम एल्फाबैट नूं लोअर केस विच लिया, स्मॉल टी। सो गैमीट फॉर्मेशन होया जो फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, तो आप देखा कि सारे प्लांट्स जो सीगे वो टॉल सीगे, कोई भी प्लांट जिहड़ा सीगा वो डवार्फ नहीं सीगा। सो F1 जनरेशन मीनस जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो की करेगी, एक पेरेंट नूं रिजेंबल करेगी और दूसरा पेरेंट जिहड़ा हैगा वो उत्थे नज़र नहीं आएगा। ਜਦੋਂ F1 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਲ ਟੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਨੇਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ 75% ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟॉल ਸੀਗੇ ਔਰ 25% ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਡਵਾਰਫ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟॉल ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਵਾਰਫ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਪੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰਸ। ਪੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਫੈਕਟਰਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਜੀਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੈਕਟਰਸ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਈਚ ਕਰੈਕਟਰ। हर एक करैक्टर वास्ते जिहड़ा फैक्टर है दैट एग्जिस्ट इन पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहने टॉल प्लांट, सो प्लांट इज़ टॉल,
लेकिन आपां इसनूं की है एलिल नूं पेयर दे विच लिख रहे हैं, या आपां कहने हाँ सीड इज़ राउंड, सो या प्लांट इज़ डवार्फ मैं इत्थे लिखिया हैगा। सो जिन्ने भी हेरिडिटी करैक्टर्स ने दे आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर एंड देयर इज़ अ पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करैक्टर। ओके नैक्सट ओके बच्चे नाउ हुण आपां फर्स्ट लॉ ते आ रहे हाँ, या प्रिंसिपल ऑफ डोमीनेंस या लॉ ऑफ डोमीनेंस, जो कि मैंडल दे रिजल्ट्स तो इंटरप्रिटेशन तो बाद कुछ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मैंडल ने दिते सी। एंड फर्स्ट जो प्रिंसिपल है या जो लॉ है दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डोमीनेंस। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमीनेंस? According to the law of dominance, out of two contrasting factors, only one express itself in the individual. For example ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਟਾਲ ਤੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਡਵਾਰਫ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਟੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ F1 ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਵਾਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਟਰਾਸਟ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸੈਸਿਵ ਫੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ यूनिट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਡਿਸਸਿਮਿਲਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰ, ਡਿਸਸਿਮਿਲਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਫॉर एग्जांपल ਦਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਰਾਊਂਡ ਸੀਡ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਕਲਡ ਸੀਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਸਸਿਮਿਲਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ और दूसरा जड़ा है वो की रहेगा, रिसेसिव रहेगा। ठीक है, सो आउट ऑफ द टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेस इन एन इंडिविजुअल। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਫੈਕਟਰ। ओके सो बच्चे इत्थे एक लॉ ऑफ डोमीनेंट एग्जिबिट हो रहा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। सो आपने की किया, आप दो प्लांट्स लिए हैं, एक आप होमोजाइगस टॉल लिया है कैपिटल टी इट इज़ अ टॉल प्लांट, और इनू आप कर रहे हैं क्रॉस कि डवार्फ प्लांट ने नाल, डवार्फ की हैगा स्मॉल टी, दोनों क्रॉस होया, गैमीट्स बने, फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स की सीगे दे वर ऑल टॉल। और अगर जीनोटाइप देखोगे इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं तुहानू प्रीवियस लेक्चर च एक्सप्लेन किया सी, जो दोनों एलिल्स सेम ने उन्होंने आप होमोजाइगस बोलिया सीगा। दिस इज़ नोन एज होमोजाइगस कंडीशन व्हेन बोथ द एलिल्स आर आइडेंटिकल। ये भी होमोजाइगस है, लेकिन जदों दोनों कैपिटल ने डोमीनेंट ने तो एक ही होएगा होमोजाइगस डोमीनेंट होएगा, और एक ही होएगा होमोजाइगस होएगा ये भी, लेकिन ये होएगा होमोजाइगस रिसेसिव। सो जो F1 जनरेशन आई तो एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, एक ही होएगी हेटरोजाइगस, दिस इज हेटरोजाइगस होएगा। उस तो बाद ये देखा गया कि जो F2 जनरेशन आया उस दे विच 3 प्लांट्स जिहड़े सीगे वो की सीगे, टॉल सीगे, और एक प्लांट जिहड़ा सीगा वो की सीगा, डवार्फ सीगा। इट मीनस जदों डोमीनेंट जीन प्रेजेंट होंदा है तो उसकी प्रेजेंस दिस विच रिसेसिव जीन अपने आप नूं एक्सप्रैस नहीं करता। सो दिस इज़ लॉ ऑफ डोमीनेंस। ठीक है, सो जो आप एक ट्रू जिवें टॉल पी प्लांट हैगा, ठीक है, सो होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ने, इन्हों आप होमोजाइगस डवार्फ के नाल क्रॉस कर रहे हैं, तो सारी F1 जनरेशन जो है वो टॉल है। ठीक है, इसका मतलब जेड़ा डवार्फ प्लांट का फैक्टर हैगा वो अपीयर तो हो रहा है, लेकिन वो फैक्टर जो है वो अपने आप नूं एक्सप्रैस नहीं कर रहा। सो दिस इज़ बिकॉज डोमीनेंट जीन की प्रेजेंस के विच रिसेसिव करैक्टर जो है वो एक्सप्रैस नहीं करेगा, डोमीनेंट फैक्टर जो है वो अपने आप नूं एक्सप्रैस करेगा। सो बच्चे ये जिहड़ा 3:1 रेशो है, मैं तुहानूं कल भी एक्सप्लेन किया सीगा कि जो आप F1 साडा आया कैपिटल टी
ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਨੇਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮੋਲ ਟੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟੌਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਟੌਲ। ਥਰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆਇਆ, ਅਗੇਨ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਟੌਲ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਮੋਲ ਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਏਗੀ 3 ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਵਾਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 3:1। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं, सो 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशो होएगी और फिनोटिपिक रेशो होएगी 3:1। ओके, सो बच्चे हम साडे कोल आई होप तुहानू लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आ गया होएगा। नैक्सट हैगा साडे कोल लॉ ऑफ सैग्रीगेशन और प्रिंसिपल ऑफ सैग्रीगेशन। इसका की मतलब है भी बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड की है कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਲਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਗੈਮੀਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ 'ਚ ਸਮੋਲ ਟੀ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ वन ऑफ द 2 फैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ? ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੈਨ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂਗੇਦਰ ਇਨ ਅ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੀਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਹੈ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੈ, ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਓਨਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ 'ਚ ਸਮੋਲ ਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਸ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। So what is law of segregation? हर individual has a pair of factor, alleles pair ਹੁੰਦੇ ਨੇ, for example capital T, for example small t ਔਰ alleles ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ segregate ਕਰਦੇ ਨੇ। segregate ਮਤਲਬ separate ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ gametes ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ capital T ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, small t ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, small t ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ fertilization ਹੋਏਗੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੈਨ ਦੋਨੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ कैपिटल ए प्योर डोमिनेंट है, देन स्मॉल ए जो है रिसेसिव है, ये पेरेंट्स हैं। देन गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, जोड़ा कैपिटल ए है क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इक्को तरह का गैमीट बनाएगा कैपिटल ए और सिमिलरली इक्को तरह का गैमीट बनेगा स्मॉल ए। दोनों गैमीट फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन तो बाद इधरों कैपिटल ए आया, इतों स्मॉल ए आया, देन वॉट वी गेट अ जाइगोट की आ गया कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, ये होगी साडी F1 जनरेशन। ना अगे देखो जो F1 जनरेशन की हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਲਫਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਸੈਲਫਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁਨੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੈਮੀਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ। फर्स्ट साढ़े कोल कैपिटल आएगा जो कि होमोजाइगस हो गया, देन कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया जो कि हेट्रोजाइगस हो गया, ये भी हेट्रोजाइगस हो गया, स्मॉल ए की होएगा ये प्योर रिसेसिव होएगा। सो साढ़े कोल जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा 1:2:1। मैं तुहानू हुणे एक्सप्लेन किया क्योंकि जो प्योर डोमीनेंट बनेगा वो सिर्फ एक होएगा और जो प्योर रिसेसिव होएगा वो भी एक होएगा, लेकिन जो हेट्रोजाइगस होंगे वो की होंगे 2 होंगे। सो अपने कोल जो जीनोटाइप रेशो आएगा वो आएगा 1:2:1 राइट। सो ये साडा लॉ ऑफ सैग्रीगेशन है जो मेंडल ने प्रपोज किया। लॉ मैं फिर तो एक्सप्लेन कर रही हाँ कि जदों पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स होंदे ने, जदों हाइब्रिड जो इकट्ठे आते हैं तो फैक्टर्स ब्लेंड नहीं होंदे, ये दोनों मिक्स नहीं हो जाते, ये दोनों एक दूए के नाल रहंदे ने और सैपरेट होंदे ने जदों कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम जदों मियोसिस होएगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स तो वो की होंगे वो सैग्रीगेट हो जाएंगे, सैपरेट हो जाएंगे और फिर तो पेयर्ड हो जाएंगे जदों फर्टिलाइजेशन होएगी। ओके जदों फर्टिलाइजेशन होएगी दोनों फिर तो इकट्ठे हो जाएंगे राइट। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सैग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट्स, नैक्सट साढ़े कोल एक होर क्रॉस आ रहा है जिसनों असीं कहने हैं टेस्ट क्रॉस। हुण आपां इत्थे 2 क्रॉस करने हैं, एक टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो हुंदा है एज द वर्ड इंडिकेट टेस्ट करन वास्ते हुंदा है। हुण बच्चे एक चीज़ आपां देखो जिवें मैं तुहानूं कई बार एग्जाम्पल दिता कि अगर टॉल प्लांट है, अगर दोनों एलिल्स कैपिटल है तां भी प्लांट टॉल है, अगर एक एलिल कैपिटल एक स्मॉल है तां भी प्लांट टॉल है। सो टेस्ट क्रॉस जो होंदा है ये टेस्ट करने वास्ते यूज़ होंदा है किसी भी कोई अननोन जिहड़ी चीज़ है, अननोन जिहड़ा प्लांट है तो जीनोटाइप आपां किद्दां फाइंड आउट करांगे, ठीक है। सो टेस्ट क्रॉस करने वास्ते की होंदा है कि आपां की करांगे, आपां जिहड़ा रिसेसिव पेरेंट होंदा है आपां F1 जो भी साडा F1 हाइब्रिड आंदा है जिवें अपना कैपिटल T स्मॉल t आया F1 हाइब्रिड आया, सो उसनूं आपां रिसेसिव पेरेंट दे नाल क्रॉस करांगे। सो देखो ध्यान नाल समझो बच्चे, इत्थे जिहड़ा मैं कैपिटल टी है सपोज अननोन है, मैनू नहीं पता कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मैं 2 सिचुएशन लिया ताई मैं इत्थे अंडरलाइन किया है, इत्थे मैं होमोजाइगस डोमीनेंट ले ली, इत्थे हेट्रोजाइगस ले ली, दोनों नूं रिसेसिव पेरेंट दे नाल आपां क्रॉस करता, ठीक है। ये भी की है होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है। फर्स्ट देखो मैं पुनेट स्क्वायर बनाया, कैपिटल टी इत्थे लिख लिया, स्मॉल टी मैं इत्थे लिख लिया, क्रॉस करता, क्रॉस करके तुसी देखो कैपिटल टी फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ चारों केसेस दे विच प्लांट टॉल हो गया क्योंकि कैपिटल आ गई, डोमीनेंट जीन है, रिसेसिव नहीं एक्सप्रेस करेगी। सो फिनोटाइप की होएगा 4:0 बिकॉज सारे के सारे प्लांट्स की हो गए टॉल हो गए। जीनोटाइप की होएगा, जीनोटाइप सारे इको टाइप का जीनोटाइप है, कैपिटल टी कैपिटल टी इत्थे भी सेम। सो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम, ऑल प्लांट्स आर टॉल राइट। सैकेंड सिचुएशन देखो जो हेट्रोजाइगस सीगा तो इत्थे आपां लिखिया कैपिटल टी और इधर आपां दूजे गैमीट्स बनते कैपिटल स्मॉल टी इनू तुसी क्रॉस करो, इत्थे की आया कैपिटल टी इत्थे की आया स्मॉल टी इनू क्रॉस किया, फिर कैपिटल टी और फिर आ गया स्मॉल टी। इत्थे अगर तुसी फिनोटाइप देखते हो तो 2 प्लांट्स जिहड़े ने वो टॉल आ रहे हैं और 2 प्लांट्स आ रहे हैं ड्वार्फ। सो रेशो होगी 2:2 या आप इनू 1:1 भी कह सकते हैं। और जे तुसी आप जीनोटाइप देखो 2 एक तरह के आ रहे हैं, 2 एक तरह के आ रहे हैं, सो रेशो आ गई 1:1। सो इत्थे जिहड़ा अगर हुण इट मीनस अगर सारे टॉल आ रहे हैं, ध्यान नाल समझो बच्चे, अगर सारे टॉल आ रहे हैं इत्थे मतलब आप टेस्ट करके सी अगर साडे कोल रिजल्ट सारे टॉल आए तो आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं कि प्लांट की है, प्लांट जो है वो होमोजाइगस डोमीनेंट है। अगर अपने को रेशो 1:1 से आ रही है तो आप टेस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लांट की है वो हेट्रोजाइगस है। और अगर असी रिसेसिव ना करांगे फिर की होएगा, फिर तो सारे प्लांट रिसेसिव ही आएंगे लेकिन रेशो आएगी 0:4 बिकॉज पहला आप डोमीनेंट लिखते हैं फिर आप रिसेसिव लिखते हैं।
और जीनोटाइप भी 0:4 आएगा। सो टेस्ट क्रॉस के नाल असी किसी भी अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता कर सकते हैं कि जदों जीनोटाइप सानू बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, बिकॉज जीनोटाइप आप देख नहीं सकते। सो टेस्ट क्रॉस के नाल अगर साडे कोल सारे टॉल प्लांट आ रहे हैं, सारा डोमीनेंट करैक्टर आ रहा है, इट मीनस प्लांट की होएगा, वो होएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 50-50 आ रहे हैं, 1:1 रेशियो आ रही है, फिर की होएगा हेटेरोजाइगस, राइट। सो बच्चे NCERT का डायग्राम है, थोड़ा समझ आ गया होएगा। इत्थे आपां देखो होमोजाइगस रिसेसिव है, इत्थे भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। आपां वायलेट ते वाइट फ्लावर्स कर रहे हैं पी प्लांट दे, वायलेट डोमीनेंट है, वाइट जिहड़ा हुंदा है वो रिसेसिव हुंदा है। इत्थे आपां की कर रहे हैं होमोजाइगस नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे वायलेट आ गए। इत्थे आपां कर रहे हैं हेटेरोजाइगस नाल कर रहे हैं तो 50% वायलेट आ गए, 50% वाइट आ गए। सो एक टेस्ट क्रॉस है, जदों सारे वायलेट आए, सारा डोमीनेंट करैक्टर आ गया, इट मीनस प्लांट की है होमोजाइगस डोमीनेंट है। जो 50% वायलेट आ रहे हैं, 50% वाइट आ रहे हैं, यदा मतलब अननोन फ्लावर की है, हेटेरोजाइगस है। सो एक टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस अननोन जिहड़ा प्लांट होएगा ਉਹਦਾ जीनोटाइप पता करने वास्ते ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की हुंदा है, हमेशा जिहड़ा F1 हाइब्रिड आंदा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ वाला ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पेरेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वन ऑफ द 2 पेरेंट्स ਨਾਲ क्रॉस ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जिवें आपां 2 पेरेंट्स ले टॉल एंड डवार्फ, राइट। साडे कोल F1 आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। हुण बैक क्रॉस की है, जिहड़ा साडे कोल F1 आया उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डोमीनेंट पेरेंट ਦੇ ਨਾਲ क्रॉस कर रहे हैं, या ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ क्रॉस कर रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट ਦੇ ਨਾਲ क्रॉस कर रहे हैं। सो अगर जदों आपां ਉਹਨੂੰ F1 ਨੂੰ डोमीनेंट पेरेंट ना करांगे तो आ वाली सिचुएशन देखो सारे टॉल आ रहे हैं, ठीक है। और जदों आपां इसनूं रिसेसिव पेरेंट दे नाल टॉल कर रहे हैं तो क्रॉस कर रहे हैं तो रेशो साडे कोल आ रही है 1:1, और इसनूं आपां टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। जदों आपां F1 का जो अपना जाइगोट है उसनूं आपां रिसेसिव पेरेंट दे नाल क्रॉस करते हैं तो उसनूं आपां टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जो बैक क्रॉस हुंदे ने ये अपनी दे आर डन टू इंक्रीज द डिजायर्ड ट्रेट। सपोज सानूं सारे टॉल प्लांट्स चाहिए हैं, ठीक है, साडा डिजायर्ड सानूं करैक्टर है, सानूं सारे टॉल प्लांट्स चाहिए हैं, तो आपां की करांगे, जो साडे कोल फस्ट F1 जनरेशन दे विच जो प्लांट्स आएंगे उन्हां नूं आपां होमोजाइगस डोमीनेंट जिहड़ा पेरेंट है उस दे नाल क्रॉस कर दांगे। दैन व्हाट इज़ द रिजल्ट, 100% साडे कोल जिहड़ा रिजल्ट की होएगा वो टॉल प्लांट आएंगे। सो बैक क्रॉस जो है दैट इज़ डन टू इंक्रीज द डिजायर्ड ट्रेट, राइट। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप थोनों अज का लैक्चर समझ आ गया होएगा। अज आपां मेंडल दे लॉस किते, लॉ ऑफ डोमीनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। देन व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज़ बैक क्रॉस। आई होप इट इज़ क्लीयर टू यू। इस लैक्चर में बहुत चंगी तरह बच्चे पढ़ना, नोट्स इससे बनाना। इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड देन द इनकम्प्लीट डोमीनेंस एंड वन मोर नेक्स्ट टॉपिक. Till then, have a good day, बच्चे. Thank you so much.